Salim, and I am here on request of Mr. K. Arumugam sir to welcome all of you and present this program. A very warm welcome to all of you over here who have gathered here on this sunny afternoon come evening on today's March 18th today, and this was the month of March only in 1975 when our 16 national heroes lifted the precious trophy of Hockey World Cup in Kuala Lumpur. So among these 16 heroes, unfortunately 5 heroes have left this world for heavenly abode. So we will observe a minute of silence for these heroes. Surjit Singh sir, Mohinder Singh sir, Virendra Singh, Michael Keddo, Shivaji Pawar. So can we have a minute of silence for all of them? And this book is dedicated for these national heroes. So I would like to welcome K. Arumugam sir to give a welcome address for all the dignitaries from the hockey world and all of you. Sir, please. Good evening to all. Good evening to all. I don't know to speak in English or in Hindi because बच्चे सब Hindi they would like to hear. Mr. Dilip Tirkey has come here, the senior most hockey player in Delhi or in India, I can say. Mr. Harbinder Singh is here. Dear friend, family friend, Mr. Ashok Kumar is there. Always, Kach's Brigadier Chimney Saab is here. India's another captain, Savar Iqbal Saab is here. So I welcome all of you here. I have been associated with the hockey for so many years. I remember I wrote my second book. It was a profile of Olympic captain Dilip Tirkey. I wrote about him. I consider profile of a hockey player even as he was playing. That was the first case. Otherwise, while players were playing, no books were written. So that honor he has given me, I compiled that. And that book was supported by another captain, Savar Iqbal ji. He is sitting here. He was that time in Indian Airlines. He told you, go ahead, I will support you. Like Indian Oil is supporting this book. That time Indian Airlines supported the book. The greatest thing there is, in my entire life, I agreed to flight charge from only one person to go and attend the function. Naveen Patnaik, he released that book. He gave me flight charges. Dilip Tirkey. In my entire life, I have not taken flight charge from anybody else. Anybody else. PHL was going on in Chandigarh. He forced me how I can come. There was time less. That time he was not a politician. I don't think now also he is a politician. अभी भी नहीं है. So I am very happy to have this occasion. A player I saw in 93 camp I saw, National Stadium it was going on. Chief coach was Mr. Savar Iqbal. 3 boys from Orissa were there. One of them was Dilip Tirkey. First camp was 93 Hiroshima Asian Games. From that onwards, now he has become president of Hockey India. A player, first player. That day I showed him the first Olympian to head the Indian hockey. That's Hockey India. So I write for Limca Book of Records. 2 days before I showed him the record he has made in the Limca Book of Record also. I'm very happy. A player you see in your, my journalism also comments that time only. That boy have grown. He has achieved so many things. He is the first player in the world to cross 400 international games. First player. Now you have 5-6 players played more than 400 games, but he is the first man that India has produced.
Next to is Harbinder Singh, 1964. He was the youngest babe of the team, 1964. He brought us Olympic gold, where all the superpowers took part in the Olympics. That was our last. So I'm happy to have both the people here and two stalwarts. Ashok Kumarji, our familiar face, we all know him. He almost did not play this Kuala Lumpur World Cup. He has told in the book. He got offered to play in the Italian club. Understand? So he forgone that luxury, that money, everything. He went and participated. He has said in our book, this is a right decision I have made in my life. So that is included in the book. Now we have him. You see, my association with Ashok Kumar is very long. Sometimes he walked on the street protesting something. We went to a police station, got permission to organize agitation. So we have been activists for long. I'm happy he is here as a gold medalist. Khachijay Chimdi Saab from the 75 World Cup. He's always witty, humor. I went and met him in the house, invited him. He has lot of works, lot of other physical problems also. But he is present here. So welcome you all. This is my 14th book on hockey. This book I wrote along with my colleague Yarol de Cruz, who actually spends a lot of time, did a lot of work on this book. This book is the third book I co-authored with anybody. The first book I co-authored was Gulu Ezekiel. He is sitting here. He has written so many books on cricket, Olympics, Olympic movement. He only told me, Golden Jubilee is an occasion you should never miss. You should write it. For that I gave him a punishment. You should edit the book. So he edited the book. So thank you sir for coming. Second book I co-authored was with M.K. Kaushik sir. When we won the 1998 Asian Games, me and Kaushik sir, together we wrote a book. Out of my 14 books, this is my third book which I co-authored. So I'm very happy to have this book. I'm very happy. Right from FIH President, our Hockey India President, Indian Oil Corporation Chairman, of all, Ajit Paul Singh, I was contacting with him, I was interacting with him. He also has given the forward. Unfortunately, he could not come. He has sent one of his staff. Is here, Mr. Vikas is here. Karan was supposed to come, he could not come. And all my youngsters, you all should see, they are the achievers sitting in front of you. आप जैसे ये भी बच्चे थे, छोटे-छोटे प्लेयर थे, समझ गया? आप जो 13-14 इयर्स का है, वो भी ऐसा ही थे. अभी देखिए कितना लेवल में आ गए हैं. इनको देख के आप लोग इंस्पायर होना है, ठीक है? बहुत अच्छा करना है. आप सब बोलेंगे, मैं बोलूँगा हमारी हॉकी. आप रिप्लाई दोगे, करोगे? हमारी हॉकी, हमारी हॉकी, हमारी हॉकी. ठीक है, इतना ही है. हम लोग this we do every day. We do this one. OTHR is my NGO. 1000 hockey legs, for which I got President of India award also. These girls are my inspiration. They were inspiration for 30 years. Now they are the inspiration for last 15 years. All are here. I welcome you, everyone here. Sayesh, Harpreet, you could have come here. Sandeep, Jaspreet, Afa, Uta, दोनों में बैठ गए हो आप. So I welcome you all here. Now program is yours. Thank you, sir. Sir has given us such a joyous and a warm welcome to all of you. And I guess this is a huge inspiration for the young blood on the field today. Is it? अच्छा लगा आप लोगों को? So today they are, tomorrow you can be there. So we will show you, we will try to make an effort to welcome with a little more effort. So I would like to request Duracharya Wadi and NS Saini Sahab to please come here. And present a bouquet to Padam Shri Dilip Tirki. Sir, to present a bouquet to Padam Shri Harbinder Singh Ji.
Dronacharya Awardee Ajay Kumar Bansal sir to please come and present a bouquet to Arjinder Singh sir, Chimney sir. Now I would request Ashok Kumar ji to please come for the bouquet. Now I would request Dilip Tirki sir to please come and present garland to Chimney sir. Sir, please come this side. I would request now Zafar Iqbal sir to come forward for a bouquet, please. Sir, picture के लिए please सामने आ जाइए आप. Sir. Thank you, sir. Now I would request Dilip Tirki sir to garland Ashok Kumar sir, World Cup gold medalist. Now we will go ahead with finally our book release. Dilip sir, Chimney sir and Ashok Kumar sir to jointly release this book. Thank you so much, sir. Thank you. Nothing, sir. Around the clock, sir. Now, sir will present a book to Padam Shri Zafar Iqbal, sir. And now we will proceed towards the memento presentation. So this is a memento presentation in which Dilip Tirki sir will again come for us. I will request Harvinder Singh sir to come again. सर आप ये रुकिएगा, सर आप ये देखिए, मैं आपको बार-बार डिस्टर्ब. Now I will request Chimney sir
for memento, please. And next we have Ashok sir for the memento. Now we have Ashok sir again with us. Gold medalist Ashok Kumar sir. This is last of the presentation. We will, memento presentation we are going, and not the least. Dilip sir will present a memento to Miss Pragya Srivastava, who is the designer of the book. Poster presentation. So final segment is the poster presentation, I think, which all of you will find extremely interesting. And again, I would request Dilip sir to present this special poster to Ashok Kumar sir. The past and the present in the picture and reality. Now finally we would like to have few words, golden words from few of our dignitaries here. And the first one to come forward, I will request Zafar Iqbal sir to come forward and share few words with us. Good evening to everybody. और ख़ास तौर पे अर्गुनम साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया। और सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एक ही वर्ल्ड कप जीता 1975 का, और उस टाइम पे मैं बस ऐसा था कि यूनिवर्सिटी की टीम में खेलता था। और मुझे अभी भी याद है कि ये जितने भी स्टालवर्ड्स आए हैं और पूरी टीम के, तो जब इन्होंने 75 वर्ल्ड कप जीता तो हम इनकी फोटो अपने पास रखते थे, तो इसलिए टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। तो वो एक अभी भी लम्हा मुझे याद है। इनकी फोटो सब, यानी सबकी फोटो मेरे पास है एक एक करके। और जो वो फोटो जो है वो अशोक भाई यहाँ पे रहते थे गोल मार्केट में, तो उनसे ली थी हमने। कहा यार उसको वी हैव टू पे, ऐसा नहीं था कि वो फ्री में उन्होंने दे दिया होगा इनकी फोटो, बट आई स्टिल रिमेम्बर। और मुझे क्योंकि एकदम से फिर मैं सडनली आई बिकेम द मेंबर ऑफ द इंडियन हॉकी इन 77, तो उस टाइम पे इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन किया था हमने
on scholarship because I was doing engineering final years. तो उसमें मुझे याद है कि असलम शेर खान ने कहा कि तुम कहाँ रह रहे हो. मैंने कहा भाई मैं तो अभी आवारा हूँ, अलीगढ़ से आया हूँ, सूटकेस कभी इधर लेके चला जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ. तो कहने नहीं, यू कम हियर एंड स्टे विद मी. तो अशोक भाई साहब भी हमारे सामने ही रहते थे और B4 में और B1 में हम लोग रहते थे, आमने सामने ही था. और वो सब हमें याद है. और सबसे खुशी की बात यह है कि ये बुक रिलीज हुई है आज, और सून आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 50 years ऑफ विनिंग, आफ्टर विनिंग द ट्रॉफी, द वर्ल्ड कप. तो उसमें अशोक भाई साहब का हमने कमेंट्री सुना था, जसदेव सिंह का, और सभी लोग उनकी कमेंट्री तो खैर सभी लोग याद करते हैं. और अजीत पाल सिंह एंड असलम शेर खान एंड व्हाट नॉट, गोविंदा, एंड यू नो वी ऑल नो वेरी वेल. बट अगर ये फंक्शन जो है मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फंक्शन किया है. आई मस्ट कांग्रेचुलेट मुगम साहब एंड हिज एंटायर टीम. द प्रेस पीपल आर वेरी मच हियर. वी शुड आल्सो थैंक टू इंडियन ऑयल आल्सो फॉर हेल्पिंग. तो उस टाइम पे तो मैं आपको किस्सा बता रहे थे कि दिलीप को तिर्की के ऊपर लिखा, तो मैंने कहा कि अच्छा वो आपकी बुक मेरे पास है दिलीप भाई, वो रखी हुई है मेरे पास. तो आप सब लोगों को बहुत यानी बधाई, congratulations कि you have conducted a very well or well organized function here. और ऐसे ही चलता रहेगा. और हमारे पास खजाना बहुत है. ये मैं अपने दिल की बात कहना चाह रहा हूँ कि खजाना इसलिए है कि हम लोगों ने 8 स्वर्ण पदक भी जीता है, गोल्ड मेडल ओलंपिक्स का. और उसमें जब हम लोग कांस्य पदक की इतनी वैल्यू दे रहे हैं फॉर लास्ट 2 ओलंपिक गेम्स, तो वी शुड आल्सो रिमेंबर द अर्लियर वंस. तो ऐसा नहीं कि हमारे पास मटेरियल नहीं. आई वुड रिक्वेस्ट दिलीप तिर्की के दिस इज नॉट द एंड ऑफ हॉकी, इज अ बिगिनिंग. आई वुड से कि भाई इतना अच्छा यानी 8 स्वर्ण पदक जीतने वाली हिंदुस्तान की टीम पे सिल्वर भी, उसमें पे ब्रॉन्ज भी 2-2 जीते हैं. और उस जमाने में ब्रॉन्ज जब जीतते थे तो कोई भी ये नहीं कहता था मैं हॉकी प्लेयर हूँ. आई स्टिल रिमेम्बर दोज वर्ड्स. 72 का भी जीते तो सब लोग जैसे अब हार गए तो कहते हैं, और हॉकी जो है हाथ पे नहीं रखते थे वो. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ स्टोरी. ऐसा नहीं कि वो ऐसी मैं कह रहा हूँ. तो लोग इतना यानी शर्म में आ जाते थे, उनको इतना यानी डिमोरलाइज हो जाते थे कि यार वी हैव ओनली वन द ब्रॉन्ज मेडल. तो ऐसी 68 में भी था. और ब्रॉन्ज मेडल का मैच तो जीतना, खेलना को चाहता ही नहीं था. वंस यू लूज द सेमीफाइनल, वो कहता है यार जिसको खेलना खिला दो जी, कौन सा मैच मैं नहीं खेलना. तो वो एक कहानी होती है, फैक्ट बता रहा हूँ मैं. तो अच्छा भाई तो कौन है यहाँ पे, अच्छा तुम कहाँ खेलना चाह रहे, अच्छा लेफ्ट आउट खाली, वो नहीं खेल रहा तुम खेल लो. तो उसी में जीत जाते थे. 68 हमने जीता, 72 जीता, हॉलैंड को हमने मारा. तो मेरा ये कहना था कि वो एक म्यार था और आज का भी है. वी शुड नॉट say anything but winning back-to-back bronze medal anywhere at this time is a big job. ऐसा नहीं कि वो उन्होंने ऐसे जीत लिया हो. बहुत मेहनत की और लड़कों ने बहुत नहीं अच्छा खेल का प्रदर्शन किया. तो बहरहाल we have a lot of material in hockey, so we will continue this celebration to inspire the young generation. Thank you very much, Armugam sir, for inviting me and giving an opportunity to say a few words. Thank you so much, sir, for sharing those stories with us. And now I would like to request Ashok sir to come forward and share few stories with us and motivate the young blood on the ground today. Ashok sir. Thank you very much. Thank you. First of all, good evening to everyone. हमारे लेजेंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट, 2 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ओलंपिक के ग्रेट सरदार हरविंदर सिंह साहब, प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया मिस्टर दिलीप तिर्की साहब,
श्री जफर इकबाल, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, मुझे जिनके साथ खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं खेला 1975 वर्ल्ड कप, श्री एच.जी.एस. चिमनी साहब, द्रोणाचार्य अवार्डी हमारे बंदर साहब, श्री अरमुगम जी, जिन्होंने आज ये मार्च ऑफ ग्लोरी जिस बुक को आज अनवेल किया है, जिसकी आज विमोचन किया है, वो हम हॉकी खिलाड़ियों को और उनके जीवन पर, उनके खेल पर इनकी एक अलग से कलम जो पेन से लिखते हैं खिलाड़ियों के लिए और ख़ास तौर से खेल के बारे में, वो बहुत ही अच्छा है और इनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें। ये पैशन भी है इनका, जो बहुत कम लोगों में, खास तौर से हॉकी के अंदर तो हम लेके चलते हैं कि इन दिनों में, इस वक्त में और किताबें निकलनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियन हॉकी अब थोड़ा सा एक लेवल पर आई है। रिसेंटली जो बैक टू बैक हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जो जफर इकबाल साहब ने कहा कि आफ्टर 41 ईयर्स, तो कहते हैं ना किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है। 41 साल के बाद जब हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो उसकी कीमत बढ़ी, हमारे खिलाड़ियों का रुतबा बढ़ा जो जीत कर आए थे, और उसके बाद नेक्स्ट एक बार बैक टू बैक हमने फिर जीत लिया। तो वही बात मैं रिकॉल करता हूँ अपने आप को, और 68 के ओलंपिक्स में हरविंदर साहब भी गए थे खेलने के लिए, 72 भी खेल कर आए हैं वो। तो हम जब टीमें बैक टू बैक आई थी तो एयरपोर्ट पर लेने के लिए कोई नहीं आता था, nobody, yeah, it was matter of shame for us, क्योंकि हमारे पहले वाले 66 एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट, 84 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, 60 सिल्वर मेडल ओलंपिक, उसके बाद तो लाइन थी हमारी 6 कंटिन्यू ओलंपिक मेडल्स की। तो उस लाइन में हम खड़े थे, they were bringing gold and we were bringing the bronze medal, so it was शर्म वाकई में आती थी कि हम लोग क्या खेल रहे हैं। बहरहाल उस वक्त की हॉकी का जिक्र करना ठीक नहीं है, दैट वाज डिफरेंट हॉकी एंड व्हाट, जिस ग्राउंड पे मैं खड़ा हूँ ये अलग ग्राउंड है, इसकी हॉकी अलग है, इसका हर चीज से सिस्टम अलग है। हमें खेलना है इस पर, और हमने इस चीज को भी लर्न कर लिया है, सीख लिया इस बात को हमारी भारतीय टीम ने, कि इस पर अब हम यूरोपियन से, ऑस्ट्रेलियन से, न्यूजीलैंडर से किस तरह हमने खेलना है। मेरे लाइफ का सबसे पहला टूर्नामेंट दिल्ली में जो मैंने खेला था, वो मैंने खेला था 1969 में, जब मैं कंबाइंड यूनिवर्सिटी से खेलने आया था। मेरा सिलेक्शन कंबाइंड यूनिवर्सिटी में हुआ था, इसी ग्राउंड पर मैं खेला था, और इसी ग्राउंड के बदौलत मुझे मोहन बगान ने सिलेक्ट किया, कलकत्ता क्लब जो प्रोफेशनल लीग हुआ करता था। मेरे सामने बीकॉम का एग्जामिनेशन था 1969 में। I had to appear in BCom final year examinations. Meanwhile, I got the invitation from Mohan Bagan Club. और मेरी लाइफ के जो हमेशा मैं कहता हूँ कि I was inspired by Mr. इनामुर रहमान, the ever great, ever, उनसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं लेफ्टिन का इस भारत में निकला, जितने बड़े वो प्लेयर थे जिनके साथ मैं खेला हूँ। खेला नहीं हूँ बल्कि मैंने उनको बिना देखे अपना आइडियल माना। That was the year 1964 when Captain Harvinder Saab won the gold medal. I was hearing the commentary in Jhansi, and the commentator who was taking the name of each player, and before naming the player he was using Olympian Harvinder Singh, Olympian Mahendra Lal, Olympian Shankar Lakshman, Olympian Falane, Olympian Falane. So that Olympian words से मेरे दिमाग में मेरे एक सेंसेशन सी आई, and I decided, yes, मुझे भी अपने नाम के आगे ओलंपिक और ओलंपियन शब्द लगवाना है।
That was my commitment for hockey. No coaching, no facilities, कोई ऐसी चीजें नहीं थी जो आपको मोटिवेट करती। ऑफ कोर्स मोटिवेशन के लिए घर में दो हमारे महारथी बैठे हुए थे, मेजर ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह। वी ऑल नो दैट कि व्हाट टाइप ऑफ हॉकी ही प्लेड और इस कंट्री के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। विदाउट एनी इंटरेस्ट, टोटल डिवोटी, टोटल डेडिकेटेड। तो वो घर में बैठे हुए हैं, बट दे वर नॉट इंस्पायरिंग मी टू प्ले हॉकी, रादर दे वर स्टॉपिंग मी नॉट टू प्ले हॉकी। हॉकी वाजंट अगेन दैट टाइम कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कुछ मिलता, कोई अर्निंग सोर्स नहीं था, कोई आपका उसमें ये नहीं था कि आप खेल रहे हैं तो आपको आपके बाद कुछ मिल जाएगा आपको। माय फादर मेजर ध्यानचंद, when he joined the army as a bacha platoon, as a sipahi, the lowest rank in army, and the time he played 3 Olympics, later on उनका जो रुतबा था वो मेजर के पद से, मेजर के पोस्ट से उनको रिटायरमेंट मिला। तो एक सैनिक से और मेजर तक जाना इंडियन हॉकी में और इंडियन कंट्री के अंदर मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आई एम थैंकफुल टू द इंडियन आर्मी फॉर दैट रीजन कि आज तक वो मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं। सबसे बड़ी बात मेरे लिए पंजाब रेजिमेंट सेंटर जिसमें वो थे, रामगढ़ में जी अभी भी है वो पंजाब रेजिमेंट, 14 पंजाब, उन्होंने वहां ध्यानचंद का स्टेचू बना के लगाया, जिसमें आप सोचिए हॉकी प्लेयर का स्टेचू आर्मी रेजिमेंट के अंदर लगना एक बहुत ही रिमार्केबल बात हम सभी इंडियंस के लिए है कि खिलाड़ी का वहां पर स्टेचू लगाया गया। वो बोलते नहीं ये तो हमारे सबसे बड़े आइडियल है। ये चीजें उनके साथ में हुई, तो वो ऐसे लोग मेरे घर में थे, तो मैंने भी चोरी छुपे हॉकी खेलना शुरू किया। हॉकी का तो एरा ये था, हम सब जानते हैं, हरविंदर साहब भी बैठे हैं, सभी को मालूम है, जफर इकबाल साहब बैठे हैं, कि किस तरह हम लोग हॉकी खेलते थे। जहाँ छोटी सी ग्राउंड मिल गई, सड़क मिल गई, जहाँ 4 खिलाड़ी मिल गए, खेलना शुरू कर दिया। घर के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सड़क के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस हमारी, क्योंकि वो नेचुरल घास के ऊपर, नेचुरल ग्राउंड के ऊपर थी हमारी, तो कभी भी प्रैक्टिस कर लो। अभी इसकी प्रैक्टिस के लिए स्पेसिफिकली आपको तो एस्ट्रोटर्फ पर आना ही पड़ेगा। तो वो जो क्वांटिटी ऑफ प्लेयर्स थे वो हमारे कम होते चले गए। वो जो बीच का एरा था, हमारा 1975 के बाद, 1975 में हम कैसे खेले हैं, ओलंपिक में खेलने गए हैं। पटियाला में कैंप लगता हमारा, घास की ग्राउंड को छील दिया जाता है, उसके ऊपर गोबर लेपा जाता है, गोबर पूरे ग्राउंड के ऊपर, और हमको कहा जाता है कि एस्ट्रोटर्फ इस तरह की करीब ग्राउंड होती है जो फास्ट होती है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट। हॉकी स्टिक लकड़ी की और वुडन हॉकी स्टिक, बॉल लेदर, जो 5 मिनट के हिटों के बाद उस बॉल का वेट जो 5.5 औंस से बढ़कर 8.5 औंस 9 औंस हो जाता था, पानी सारा एब्जॉर्ब कर जाती थी बॉल। हिट मारना मुश्किल हो रहा था, और होता था, हिट नहीं लगती थी। शायद जफर इकबाल साहब को याद हो, 79 एसेंडा में आप गए थे से हिटे सुरजीत सिंह मारता था कईयों की, तो हिट नहीं लग रही, बॉल नहीं निकलती थी, प्रैक्टिस नहीं है। तो वो एरा था जब हम लोग उस फेज में थे। इंडियन हॉकी जो पहले टॉप मोस्ट हुआ करती थी वो डाउन होना शुरू हुई, और हमने डिफेंसिव खेलना शुरू किया। डिफेंसिव खेल कितना खेलेंगे, वो डिफेंसिव हॉकी होते होते हमारी टीम एक वर्ल्ड कप हारी तो 4 साल चले गए, एक ओलंपिक हारी तो 4 साल चले गए, एक एशियाड हारी तो हम 4 साल पीछे चले गए। तो वो गैप बढ़ता चला गया, इंटरेस्ट कम होता चला गया, क्वांटिटी ऑफ प्लेयर्स कम होते चले गए। जब क्वांटिटी ऑफ प्लेयर्स कम हुए तो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स भी डाउन होती चली गई। बड़े रेयर हमारे पास कुछ खिलाड़ी थे जिन्होंने संभाला इस खेल को, और मैं थैंकफुल टू द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जिन्होंने इंडियन हॉकी को बचा के रखा, जिन्होंने हॉकी को सपोर्ट किया, उसको मरने नहीं दी, खत्म नहीं होने दी, और वी सर्वाइव। उसके बाद हमारे हॉकी इंडिया और हमारे हॉकी के डिपार्टमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से इसको संभाला, आगे बढ़ाया, और आज हम उस पोजीशन में वर्ल्ड के अंदर कि इस आने वाली वर्ल्ड कप में
जो ना 2026 में है। मैं दिलीप टेकी साहब से बात कर रहा था तो इसका अफसोस सभी को है कि आखिर ये 50 जुबली ईयर्स या गोल्डन जुबली ईयर्स जो हम वर्ल्ड कप का सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको तो हमारी टीम के बीच में कई बार हमने जीत जाना चाहिए था। क्यों इसके अंदर कमी रह गई, क्या वजह है? हम ओलंपिक मैच खेल रहे हैं, एशियाड हमारे हाथ में है, अब सिर्फ एक वर्ल्ड कप है जिसको लेना है। ये बात अलग हो जाती है कि इसके अंदर वर्ल्ड की वही सिलेक्टेड टीमें आती हैं, एक स्पेसिफिक गेम अलग से होता है जो वर्ल्ड कप कहलाता है, जिसका प्रेशर अलग है। टूर्नामेंट वही है, ओलंपिक भी वही है, एशियाड भी वही है, वर्ल्ड कप भी वही टीमें खेलती है, वही कंट्री खेलती है। लेकिन जो मैटर है वो जो असली बात वही है कि हर टीम के ऊपर जो लोगो लगता है, ओलंपिक, वर्ल्ड कप, एशियाड, तो इसका इंपॉर्टेंस वो अपने आप हम लोग साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तरीके से देखें तो वो हमारे यहाँ पर हमारे चाहे वो प्रेस हो, चाहे हॉकी इंडिया हो या हॉकी प्लेयर्स हो, वो कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट करती है वो चीज। अरे कई टीम हम टेस्ट मैच खेलते हैं, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, छोटे टूर्नामेंट खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जब ओलंपिक में पहुंच जाएंगे हम कहीं कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। तो वो चीज को, वो प्रेशर से हटना है। वर्ल्ड कप का जो लोगो है उसको ये लेके चले कि हाँ अब हमारा लेवल इंडिया का बन चुका है और हम इसको मेंटेन करते हुए अगला जो वर्ल्ड कप है इसके पोडियम पर हमारी टीम को खड़ा होना है। वी हैव टू कमिट आवरसेल्फ। लाइक आई टेल यू कि शायद हमारी टीम, शायद नहीं, 1971 में हम लोग ब्रॉन्ज मेडल जीते नहीं है, वो हम हारते हैं। सिल्वर मेडल 73 में हमारे हाथ से स्लिप हुआ है आफ्टर टेकिंग 2 गोल्स लीड। हॉलैंडियर्स वो इक्वलाइज करते हैं, मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, उसके अंदर भी हमको चांसेस होते हैं कि हम जीत जाए, वो एक्स्ट्रा टाइम भी खत्म होता है। देन देयर इज 15 मिनट सडन डेथ टाइम। वो सडन डेथ टाइम जो खेला जाता है उसके अंदर भारत को, इंडिया को पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है। And that was the unfortunate लम्हा था, टाइम था, वक्त था जब हम उस पेनल्टी स्ट्रोक को मिस करती है भारत की टीम और हमारा मैच ड्रॉ होता है। फिर टाई ब्रेकर में मैच जाता है। तो वो मैच जो खेला गया था 100 मिनट प्लस पेनल्टी स्ट्रोक का टाइम, जो दुनिया का सबसे बड़ा ड्यूरेशन का टूर्नामेंट रहा। देन वो एक सेटबैक था हमारा 75 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जिसका कैंप चंडीगढ़ में लगता है। 50 रुपए दिए हमारा रोज का, जो ज्ञानी जैल सिंह साहब, उन्होंने, वो पंजाब के सीएम थे, उन्होंने कहा नहीं 25 रुपए नहीं है जो खाना इनका, नहीं 50 रुपए मैं दूंगा, पंजाब गवर्नमेंट देगी। और पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे कैंप को वहां चंडीगढ़ में शिफ्ट किया। सो वी हैड ए वेरी नाइस कैंप इन चंडीगढ़, गुड ग्राउंड्स। और सबसे बड़ी बात जो थी कि उस ग्राउंड के चारों तरफ सुबह शाम जब हम प्रैक्टिस करते थे तो हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटीज, पंजाब के लोग वो पूरे ग्राउंड में बैठकर उस प्रैक्टिस को देखते थे। क्या होता है इस प्रैक्टिस को देखने से कि हमारे अंदर एक तो अपने अंदर से खिलाड़ी के तौर पर हम लोग ये चाहते हैं कि हाँ कोई हमको देखे, कोई प्रेस करे, तारीफ करे और ये भी कहे कि हाँ तुम खराब खेल रहे हो, हमको वो भी करे। तो ये चीजें वहां पर हुई, जिसका असर ये हुआ कि हर खिलाड़ी अपने आप में हर तरह से हॉकी को किस तरह जीतना है उसमें शामिल हो गया। जिस टाइम में हम पहुंचते हैं कोलालमपुर, मैं एंटर करता हूँ होटल के कमरे में, तो सामने वार्डरूम में वर्ल्ड कप 73 का जो मिस हो गया था हमारे हाथ से, वो सामने रखा था। मैं उसके पास जाता हूँ, ये मेरी खुद की बात है, मैं उसके पास जाता हूँ, सामने वार्डरूम के पास मैं खड़ा होता हूँ और अपने मन में अपने कमिटमेंट करता हूँ कि जो हॉकी मैंने सीखी है, जो खेली है, इसकी प्रैक्टिस मैंने करी है, नाउ दिस इज द हाई टाइम कि वो चीज हॉकी मेरी उस ग्राउंड पे ऊपर निकलनी है, जो मैंने सीखा है। अब नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड मैं समझता हूँ खिलाड़ी वही है जो अपने उस खेल को जो उसने सीखा है, जो लर्न किया है, उसको उस टाइम पर, जो खेल के टाइम होते हैं, किस वक्त क्या करना है, उसको जिसको ये चीज पता लग जाए
तो वो चीज टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और वो हमने खेलना शुरू किया, मैच खेले, 1 जीते 2 जीते, तीसरा मैच हुआ अर्जेंटीना से, एंड पता नहीं कैसे वो टीम हमारी अर्जेंटीना से हार गई, आंखों के सामने रहे वो टीम हार गई। उसके बाद हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया से होता है, हम उसको ड्रॉ मैच करते हैं, और हमारा पूल का जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैच था वो जर्मनी से था, और जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग टीम, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। पहला मैच ड्रॉ हो जाता है, पानी गिर जाता है, सेकंड दूसरी बार होता है, उसको 3-1 से फिर उनको अपने तरीके से, अपनी स्ट्रेटेजी से, कोचिंग नाम की चीजें बहुत कम होती थी उस गांव के ऊपर, कोचिंग नाम की चीजें बहुत कम थी। हमारे खिलाड़ी जो थे उस इतने टूर्नामेंट साल भर इंडिया में खेलते थे, पूरे देश के अंदर अलग अलग टूर्नामेंट, और सबसे बड़ा नेशनल चैंपियनशिप जो खेलते थे उसके बेस के ऊपर वो खिलाड़ी सिलेक्ट होते थे। तो आप समझ सकते हो कि जो खिलाड़ी इंडिया टीम में आते थे वो हर तरह से कंप्लीट प्लेयर हुआ करते थे। वो जो कंप्लीट प्लेयर हुआ करते थे फिर उनका सिलेक्शन होता था, और जैसा मैंने आपसे कहा कि 69 में मैं पहली बार खेला, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ बंगाल से, वहां से भी सिलेक्शन होता तो मेरा फिर इंडिया से खेलना शुरू हो जाता है। और उस लेगेसी को, उस चीज को, सबसे बड़ी बात कि मेडल्स घर में मैंने कभी ध्यानचंद साहब को नहीं दिखाए, चाहे वो मेडल 70 का सिल्वर मेडल हो, 71 का ब्रॉन्ज मेडल, 72 का सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल, 73 का, आई नेवर शोड गोल्ड मेडल। तो और कभी हिम्मत ही नहीं उनका कि मैं सिल्वर मेडल लेके आया हूँ। तो मेरे दिल में था कि कब वो मौका आएगा कि जब मैं अपने पिता के सामने खड़ा होकर कहूँ कि भाई ये गोल्ड मेडल है। तो आई वाज ट्राइंग, एंड फॉर्चुनेटली 75 में ऐसा मौका आता है, इंडिया टीम जीतती है अंडर द कैप्टनसी ऑफ ग्रेट कप्तान अजीतपाल सिंह, और हमारी पूरी टीम उसके लिए बधाई की हकदार है, और आज भी है। उसका 50 साल गोल्डन जुबली ईयर्स पूरा देश सब सेलिब्रेट कर रहा है, हमारे बच्चे उसको इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो इंस्पायर करती हैं, और ये बच्चे जो बैठे हुए हैं, और खासतौर से अनमोल साहब ने अपना जो 1000 हॉकी लेग्स, तो ये चीजें हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए है। कि ये कहानी है तो बहुत हम लोगों के पास में है कहने के लिए, बट वी प्लेड हॉकी, वी लर्न हॉकी थ्रू अदर्स। दूसरों को देखकर सीखी है हमने, दूसरों की अच्छी क्वालिटी को देखकर सीखी है, अपने खेल के अंदर उस हॉकी को शामिल किया है। सुबह तो शाम को प्रैक्टिस मैच में उसको शो कर देना, निकालना कि क्या चीज हमारे फायदेमंद है, जो टीम के लिए, जीत के लिए हो। तो जीतना कैसे है, हाउ टू विन, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन इसको हमको समझ के रखना चाहिए कि हाउ टू विन। हर कोई खेलता है, हर कोई हर चीज जानता है, लेकिन सही वक्त पर, सही मौके पर हॉकी के साथ अपने को एडजस्ट करना, खेलना, ये बस उस प्लेयर की क्वालिटी होती है। तभी डॉन ब्रैडमन बनते हैं, तभी ध्यानचंद बनते हैं, तभी ग्रेट पेले बनते हैं। तो इस तरह की चीजें हमको दिमाग में रखना है। अनमोल साहब, आपकी ये प्रयास, आपका ये डिस्प्ले बहुत इंस्पायर करा हम लोगों को, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कि आपने मौका दिया इस बात कहने का। और बच्चों को यही कहूंगा कि प्रैक्टिस करो, जब ग्राउंड पर आओ बातें कम, प्रैक्टिस जितना करोगे, जितना हार्डवर्क करोगे, तो आखिर में एक चीज आपको हासिल होगी। और वो आखिरी चीज क्या हासिल होती है, वो है कॉन्फिडेंस। वो पहले नहीं मिलता, वो कॉन्फिडेंस आपको सबसे बाद में मिलता है। जिस दिन कॉन्फिडेंस मिल जाएगा आपको, बस उस दिन समझना कि आप टीम को जिताने के लायक हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir, and I would request you to present this moment to Gulu, sir. We welcome Gulu, sir. Thank you so much, sir, for your words. We all have heard
said, action speaks louder than words, but words stay longest. And that is why we write books, we read books. And with this, I would like to have few words from Chimney sir also. So I would like to bring the mic to you over there only. मेरे तो सिर में बहुत दर्द है और अभी आपने सारी बात सुन ली है, तो मैं आपको सिर्फ एक दो बात आपको सुनाऊंगा, और वो सिर्फ हंसने वाली बात होगी, दूसरी बात नहीं। एक गांव का सरदार इंग्लैंड चला गया, एक गांव का सरदार इंग्लैंड चला गया, ठीक है। तो एक दिन उसने कहा कि चलो आज बस में ट्रैवल करता हूँ, तो बस के पास जाके खड़ा हो गया। वहाँ लाइन लगी हुई थी, और जो लाइन लगी थी उसके सबसे आगे 5 लेडीज तो वहाँ की इंग्लैंड की थी, उसकी बारी पीछे आ गई। और जब बस आई तो कंडक्टर ने उन्हें अंदर जाने दिया। तो जो बस थी थोड़ी ओवर क्राउडेड थी, तो जब 5 लेडीज अंदर चली गई तो उसने कहा नो मोर नो मोर। तो गांव का सरदार कहता कमाल है यार, मोरनी अंदर चली गई, मेरी बारी आई, नो मोर नो मोर, ये कैसे हो सकता, ये कैसे हो सकता। तो इसका एक दूसरा और भी है कि एक इंग्लैंड का इंग्लिश मैन वो पंजाब गया और मार रोड के ऊपर वो वॉक कर रहा था, तो एक सरदार मिल गया। तो उसने पूछा सरदार जी मार रोड, तो उसने कहा आओ, तो अभी उसको आओ तो बेचारे को पता नहीं था। सेकेंड सरदार जी थर्ड आओ, मैंने मेट दी फोर्थ सरदार जी, टाई वाई लगाई, सब कुछ लुकिंग वेरी वेरी स्मार्ट। तो ही आस्क्ड हिम Sardar ji is Marod? He said, yes. He said, very, very interesting. I asked the other 3 Sardars, and they were saying this. This means you are very well educated. Thank you. Thank you, sir. And last, final word from Harbinder Singh, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हरमंगम साहब ने यहाँ पर को मिलने के लिए मौका दिया, और उन्होंने इतनी मेहनत करके ये बुक लिखी है। इट्स नॉट जोक, इट्स वेरी हार्ड वर्क। तो मैं हरमंगम साहब को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और ये एक बुक लिखी और गोल्डन जुबली के ऊपर, और सारे प्लेयरों को उस पर शामिल किया। और मैं सबके लिए जितने, और ये इनका एक बहुत काम है कि 1000 फ्लैग हॉकी जो बनाई है इन्होंने, ये मोटिवेट करते हैं बच्चों को। एंड आई विश कि इनसे आने वाले समय में ओलंपिक प्लेयर बने और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. And finally, I would like to invite Dilip sir to say few words, because he is right now in the system, and we have the players who are just sitting outside the system, about to enter the system. So I think we can have few words from him. Please welcome him with a round of applause. थैंक यू सो मच मैम जी। नमस्कार। श्री के आर मुकम जी, हमारे ओलंपियंस, हमारे हॉकी के लेजेंड हरविंदर साहब जी, चिन्नी साहब जी, हमारे अशोक कुमार जी, हमारे जफर इकबाल जी, द्रोणाचार्य बंसल जी, फिर हमारे राजेश जी, हमारे शर्मा जी, हमारे प्रेस रिपोर्टर्स, हमारे जितने सीनियर प्रेस रिपोर्टर्स, और हमारे हॉकी के फैंस और बच्चों, सबसे पहले आरमुगम जी आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे हॉकी फ्रेटर्निटी की ओर से, हम सब की ओर से, हॉकी इंडिया की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई कि हॉकी के बारे में जो जानकारी, हॉकी के बारे में, हॉकी की हिस्ट्री के बारे में तो जानकारी है। कई गिने चुने लोग हैं, उनमें से आप हैं, और इतने सारे हिस्ट्री जो कि हॉकी प्लेयर को मालूम होना चाहिए,
जो कि 1924 से लेके बहुत सारे ओलंपिक्स वर्ल्ड कप के बीच में क्या क्या हुआ, जैसे मुझे भी कई से बहुत सारी चीजें मुझे भी मालूम है, जो कि आपको सारे हिस्ट्री मालूम है। और अच्छी बात है कि लोगों के सामने आप उसको दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, और वही इंस्पायर करेगा बच्चों को। और आप 75 वर्ल्ड कप टीम्स के जो गोल्डन मोमेंट को आप जो मार्च ऑफ ग्लोरी के हिसाब से जो बुक आज रिलीज हुआ, उसमें कई सारे ऐसे चीजें होंगे जो कि हमें मालूम नहीं होगा, और डेफिनेटली हमें आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करेगा। सो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जितने भी हमारे बच्चे हैं, आप लोगों को भी मैं मेरे ओर से बेस्ट विशेस। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी हॉकी ग्राउंड है, मेरे लाइफ को चेंज कर दिया है। इतना ही कहना चाहूंगा। मैं 89 में पहली बार सब्जी में नेहरू खेलने आया था यहाँ। सो मैं बाहर बैठता था, मुझे खेलने का मौका नहीं मिलता था। तो यहाँ पे है हमारे बंसल को सब हमारे कोच हुआ करते थे। मैं पहले फॉरवर्ड में खेलता था। सो एक मुझे खेलने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि सीनियर प्लेयर थे। तो बैड लक, एक मिडफील्डर का तबियत खराब हो गया, तो कोच साहब मुझे कहा कि हाफ लाइन खेलोगे? हाँ सर खेलूंगा मैं। सो मैं लेफ्ट हाफ खेला, ठीक ठाक खेला। कोच साहब ने मुझे सुपर बैक के हिसाब से खिलाया, और वहीं से मेरा करियर वहीं से मेरे डिफेंडर हिसाब से आया, और वही डिफेंडर हिसाब से मैं करियर गया। तो कोच साहब का यही ग्राउंड है। तो बच्चों, आप लोग का मैं धन्यवाद दूंगा बच्चों को। आप फ्यूचर हॉकी प्लेयर बनाने जा रहे हैं, और डेफिनेटली सिंसियर प्रैक्टिस ही हमारे फ्यूचर है। आप लोग हमारे फ्यूचर, हमारी ओर से ऑल द बेस्ट। और थैंक यू सो मच आरमुगम जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो मच। Thank you so much everyone for patiently hearing and braving this sunshine right now. Although this is almost we are inching towards the end of March, but it is getting hot, and braving it for a game which was dearly loved in its 70s, 80s. The 70s saw the glory of this game, 60s and 70s, and now again, after, as few of the players said, that we are again inching towards and renewing our spirits on this new format of the game and finding our groove. So best of luck to all of you. Thank you so much to all the legends for taking out time, and all of you out there to be with us this afternoon. Thank you so much.